Student, welcome to Tivagar Education Hub. I, Neha Miglani, giving a view on the topic of types of research, part 3. This is my third video on this types of research. If you not go through my previous video, please go through my previous videos of types of research. In I have discussed 4 to 5 methods of research. Sorry, 4 to 5 types of research. So in our this video we are going to discuss the another methods of the types of research. So let's start our topic. Starting my videos, I just want to say that just get enrolled yourself in the Vagar Education Hub and you can get most reliable data for your net preparation on the topics or on the subjects on commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, physical education. And you can also get the sample PDFs from the Vagar Education Hub. And for any query, you can call on the number which are given on the screen. In today we are going to discuss the experimental research. Before discussing the experimental research, I will give you some view about the all the 5 methods which of all the 5 types of research which we have already discussed in our previous videos. First one is the applied research. Applied research is that research which in which we can formulate theory, in which we can formulate some rules, some formulas, some basic concepts for the research for the world. This is the process by which we have taken by the scientist only, या फिर theorist, या फिर कोई professor doctorate only, and by which by applied research we will get the some basic solution about that particular problem. So now come to the basic research. This research is called too pure, too basic, too pure. Pure का मतलब it's very pure research has been conducted and it is based on the scientist curiosity. It is applied to that concept which in which we are going to gain some new knowledge or some searching some good knowledge about that particular problem. In that type of research, no theory has been formulated, no new concept has been formulated, but we will get some knowledge about that particular problem and we will give some conclusion about that topics, but we don't give any formulas or suggestions about that particular topic, because in this type of research we don't formulate any theory or any formula about that particular problem. Now come to the correlations research. Correlation research is that type of research in which we have find out the relationship between the two variables. When the two variables has been identified and we have to find out that relationship between these two variables, then we will conduct correlation research, and this is basically done in the statistical concepts only. When we are doing research on the statistical concept or some normal series type of questions, problems we have taken, and we are going to conduct the research on that topic, then it is called the correlation research. Now come to the descriptive research. Descriptive research is that research which is in which we will describe thoroughly about that particular situation. In this type of research we will give only description about that particular topic which we are going to undertake, and we don't give any suggestions or formulas, and we don't give any conclusion about that particular problem, but we will describe thoroughly about that particular problem, that how this thing has been happened. Now come to the ethnographic research. Ethnographic research is that type of research by which we will find out we will take some problem that are related to the cultural activities. Cultural activities, like we will take some socialistic problem in which we are going to consider some cultural attributes of that particular respondents, and we will do study on that particular topic. Then it is called the ethnographic research.
Now come to the experimental research. Now this is our topic for today lecture, experimental research. Experimental by the name has been suggested according to this. Okay, experimental research is that research which is an objective, systematic, controlled investigation for the purpose of predicting and controlling phenomenon and examining probability and causality among selected variables. Experimental research are that research which are conducted in the laboratories only. ठीक है, जब हम कोई किसी पर्टिकुलर थिंग के ऊपर या पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, then it is called the experimental research. It is in that type of research in which we take an objective सिस्टमेटिक वे से कोई कंट्रोल्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम पर्पोजफुली कुछ चीज़ों को कंट्रोल्ड करके कुछ चीज़ों के एग्जामिन करते हैं और उनके वेरिएबल्स के बीच में जब हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. ऑन द होल कहने की बात सिर्फ यही है, जब हम कभी लेबॉर्ट्रीज में सॉरी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जब हम स्टडी कर रहे हैं तब उसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल जब हम कुछ मेडिसिन के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली लेबॉर्ट्री में होगा. ठीक है, ट्रायल चलेंगे, सब कुछ होगा. दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. क्लियर? नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस and disadvantages about that research? Advantages are best established cause and effect relationship. So this is the best estimation I will go through about this thing, that in experimental research we will have some cause and effect relationship between the two variables, because when we do the study in the laboratory, then we have to study the cause and effect relationship. Now come to the disadvantages of that study. Disadvantages are artificiality. Obviously, when we do some research in the laboratory, then there are some kind of artificiality in that particular topic. Feasibility, we don't find any feasibility about that particular study. And unethical, this is also an unethical view of point. So that is the experimental research. So the experimental research design include टू वेरिएबल्स एंड टू ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट. जब हम कभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को जब हम कंडक्ट करते हैं तब हम इसमें दो वेरिएबल्स को लेके चलते हैं और दो ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसमें. ठीक है, तो वेरिएबल्स कौन से होंगे इसमें? इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं कि इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं, डिपेंडेंट कौन से होते हैं. ठीक है, so two variables are to be considered under this type of study is the independent variable versus dependent variables. So the fourth is the predictor variable, whereas the IY is the predictor variable, whereas the DY is the outcome variable. So the IY is the independent variable, that are the predictor variables by which the study is going to be conducted. DY is the outcome variable, मतलब रिस्पॉन्स जब हम किसी चीज़ का इसके ऊपर चेक करते हैं तो वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. वो तो मैंने आपको बताया ही है सब चीज़ें प्रीवियस लेक्चर्स में भी. Then the researchers manipulate and control the IV to study its effect on the DV. रिसर्चर का मेन एम क्या होता है इस टाइप ऑफ स्टडी में कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करके और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके ऊपर इफेक्ट चेक करना है. ठीक है, ये जो हमें पता ही है. द टू ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट, इसमें कौन कौन से होते हैं? कंट्रोल वर्सेस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. इसमें दो तरीके के हम ग्रुप्स लेके चलते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप, एक होता है experimental group. So before beginning the experiment, the researcher randomly assign his or her sample of two different groups, that is the controlled group and experimental group. Controlled group हम दो तरीके के ग्रुप लेंगे, दो तरीके के पार्टिसिपेंट इसमें लेके चलेंगे. ठीक है, एक तो होते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिनको हम क्लिनिकली ट्रीटमेंट ग्रुप, जो हम क्लिनिकली लेके चल रहे हैं. जब लेबॉर्ट्री में हम किसी के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो जाता है. ठीक है, कंट्रोल्ड ग्रुप्स क्या होते हैं? जब हम सैम्पल्स लेते हैं डिफरेंट एक सैम्पल्स के ऊपर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो जाता है. पर जब हम एक सैम्पल को एज इट इज सेव करके रखते हैं और उन वेरिएबल्स को जब वो कंट्रोल कर रहा होता है तो वो हमारा कंट्रोल ग्रुप कंसिडर होता है. सो द कंट्रोल ग्रुप रिसीव नो मैनिपुलेशंस
of the IV or no treatment, whereas the experimental group receive the manipulation of the IV. कंट्रोल्ड ग्रुप के ऊपर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू डिसाइड की गई होती है, बट जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट्स करते हैं। बट हम जब भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो हमें दो तरीके के पार्टिसिपेंट्स लेके चलने पड़ते हैं, ठीक है। एक के ऊपर जो इफेक्ट नहीं आ रहा है, दूसरे के ऊपर जो इफेक्ट हम डाल रहे हैं, तो उन दोनों के रिलेशंस को हम जब हम फाइंड कर लेते हैं तो वो हमारी स्टडी एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहलाती है, ठीक है। सो दोबारा से मैं बता देती हूँ, जब हम किसी लेबॉर्ट्री में कोई स्टडी कंडक्ट करते हैं तो वो हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, ठीक है। और जब उनके लिए हम दो तरीके के ग्रुप्स लेंगे, बाकियों के लिए हम सिर्फ एक ग्रुप लेके चलते हैं जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। बट जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी को कंडक्ट करते हैं तब हम दो तरीके के पार्टिसिपेंट्स इसमें लेके चल रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही हम लेके चलते हैं हर तरीके की स्टडीज़ में, ठीक है। बट ग्रुप्स की बात आ रही है तो ग्रुप्स इसमें दो तरीके के लेंगे। एक तो होगा जिसको हम सेम एज इट इज़ रखेंगे और कंट्रोल्ड ग्रुप होता है, और एक होता है एक्सपेरिमेंटल जिसके ऊपर हम आईवी के ट्रीटमेंट से लगा के चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो ट्रीटमेंट्स हम लेके चल रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंसिडर हो जाता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के ऊपर जब हम ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो उनके ऊपर रिस्पॉन्ड चेक करते हैं, और जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट नहीं लगाया होता उन दोनों को फिर कंपैरिजन करके चलते हैं तो कितना अफेक्ट पड़ा है। दैट इज़ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। So now come to the explorative research. Explorative research हम जब भी एक सोशलिस्टिक एनवायरनमेंट में जब हम स्टडी करते हैं, नॉट एन लेबॉर्ट्री, नॉट एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, या फिर हम कोई भी लेबॉर्ट्री या फिर हम कोई साइंटिफिक जब हम स्टडी करते हैं तब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी को या लेबॉर्ट्री स्टडी को ही लेके चलते हैं। बट जब हम कोई से सोशलिस्टिक एनवायरनमेंट के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो दो तरीके की स्टडीज़ होती हैं। एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, एक होती है एक्सप्लोरेटिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव जो है मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में कि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ क्या होती हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी जिसमें हम कोई भी सजेशन नहीं देते हैं, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालते हैं, हम सिर्फ उस सिचुएशन को डिफ़ाइन करते हैं, वो होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटिव रिसर्च वो स्टडी होती है जब हम कभी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन जो प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं उसका कुछ सल्यूशन निकालें, उसका या फिर कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालें, तो वो हमारी एक्सप्लोरेटिव रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं पहले से क्लेरिफाई कर देती हूँ, फिर इसको स्टडी करते हैं। एग्जांपल है हमारी रोड एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। कहीं पे एक प्रॉब्लम अराइज हुई है, प्रॉब्लम हमने वो डिफ़ाइन की है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रोड पे एक्सीडेंट अकर हुआ है, ठीक है। जब हम वहाँ पे एज ए रिपोर्टर के तौर पे या फिर एक रिसर्चर के तौर पे वर्क करने जाते हैं तो हम पे डिपेंड करता है हम किस तरीके की स्टडी कर रहे हैं। अगर हमने स्टडी सिंपल यही करनी है कि हमने उस सिचुएशन को डिफ़ाइन करना है कि वहाँ पे रोड जो था कैसा है, और रोड के होने की वजह से एक्सीडेंट कैसे हुआ, किन चीज़ों के बीच में टक्कर हुई है, कितनी इंजरीज़ हुई हैं, और वहाँ रिस्पोंडेंट्स के ऊपर कितना इफ़ेक्ट पड़ा है, वो सारी चीज़ें हम सिचुएशन को डिफ़ाइन करके चलते हैं। बट व्हेन वी फाइंड द कॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट, बट जब हम उसके इन डेप्थ में जाते हैं कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंट होने का कारण क्या है, क्यों वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जब हम इस तरीके की सिचुएशंस को जब हम लेके चलते हैं तब वो हमारी एक्सप्लोरेटिव रिसर्च कहलाती है। जब हम कारण किसी का जानने की कोशिश करें कि व्हाट आर द अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, क्यों रीज़न, क्या रीज़न थे वहाँ पे एक्सीडेंट होने के, क्या वहाँ पे डेली एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, क्या वहाँ पे रोड की प्रॉब्लम ऐसी है, क्या वहाँ पे अदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। जब हम इन डेप्थ में स्टडी करने की कोशिश करते हैं देन इट इज़ कम टू द अंडर द एक्सप्लोरेटिव रिसर्च। इन डेप्थ में जाके हम सजेशंस भी दे सकते हैं, समवट कोई कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, बट हम सिचुएशन को जब हम डिस्क्राइब करके चलते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव का पार्ट बन जाती है। बट जब हम एक सिचुएशन को इन डेप्थ में लेके व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट स्टडी, इस तरीके की चीज़ों को जब हम जजमेंट में लेके आते हैं तो वो हमारी एक्सप्लोरेटिव स्टडी का पार्ट होते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इस चीज़ को कंसीडर करके चलना, फिर हम जब एक्सप्लोरेटिव स्टडी करेंगे
कल हम जब एक्सप्लोरेटिव स्टडी करेंगे तो इस सिचुएशन को फिर से मैं आपको डिफाइन करूँगी, बट आप पहले इस चीज़ को समझो कि डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ रहा है, देन वी विल गो टू द एक्सप्लोरेटिव रिसर्च। ठीक है, थैंक यू सो मच।